जय गुरु जी। सोचे सोच न होवे, जे सोचे लखवार. No matter how many thoughts we have, even if it's over 1,000 thoughts, what matters is His plan for us and His path that He paves out for us. Thank you. I will start with my journey. When I met Guruji, I had a plethora of health issues. I had a hole in the heart, um, very crippling asthma, and also skin condition. So my skin was constantly peeling, and my face was literally, my eyes were shut, face was kind of, little deformed. So there was a very severe health issues when I first met Guruji. And of course, today I realize Guruji is more than just curing us of our health issues. There is much more to him. In fact, I feel greatness, his supremacy cannot be measured in the scope of words or thoughts. And it is beyond the reach even of our expression. But I will try my utmost. And when I met Guruji reluctantly, because I had gone to many Babas and Gurus, being in the land of Gurus, I had knocked on many doors before finally the right door was opened to me. And when I walked in, Guruji was sitting alone on his gaddi in his trainer's shorts t-shirt, very unlike a guru, I would say. No beard, no saffron robe, no donation box next to him. Simply Guruji with his larger than life aura and his resplendent face and body that shone like the combination of stars and the moon. He was glorious to say the least. And as I bowed, I knew that for the first time I have come to the right place. Why I'm here, I didn't know. But I was here, and it was his calling. And then started the journey. I would say, firstly, that it was an internal journey. When I got married and came to India in 1988, I was very reactive. I had a lot of health issues, and those health issues would make me reactive. I had marital issues, those also made me reactive. So there was a lot of frustration in my life and a lot of sadness and heartbreak. So you could say the world was crumbling around me, it was caving in. And, when we fall rock bottom, that is when he rises us. But we need to be receptive and be ready to rise. So first, from my reactivity, I realized I'm responding to situations. When I looked at him, sat with him, he just said, "Tu roz aaya kar, or roz langar karna hai." Now it was close to changing season. It was changing season, literally in Delhi, and my asthma triggered. Guruji is a very practical guru. So I'm going to share all my practical experiences because I myself am a very practical human. From the very beginning, since I was born, my parents never really entangled us, I would say, in any form of superstition or rituals, being born and bred in England. So it was literally lighting a diya in front of Guruji, and that too, not a diya proper. Diya I learned to lit after meeting Guruji, but we used to light a candle and just say hi Guruji, and we're going to school. Guruji, sorry, God, and she had images of maybe 100 different gods just in case. So when I met Guruji, Guruji just looked into my eyes as if he's looking into my soul. And he said, "Tu roz aana hai, or roz langar karna hai." Back then, I'm talking about 97, 98, langar roz lagta tha 7 days a week. So I took his words as vachan. I don't know. It was love. It was love at first sight, you could say. But there was a sukoon, a sense of calmness, a sense of joy that swept over me. It was beautiful feeling, a feeling I've never experienced. Pure love. And when meeting Guruji, it was pure love. Like Guruji said, रब नु प्यार करो, रब को डरो नहीं, पर प्यार भी रेवरेंस के साथ करो, deep respect and reverence. Guruji को simplicity and purity बहुत पसंद थी. No embellishments with Guruji. Just love him. Feel that love, that energy of love in your heart.
and let that love flow in every aspect of your life. That is what Guruji wants us to be, an embodiment of love and compassion and kindness and humility and humanity. These are the things Guruji really came to teach us. Coming back to the Langar Prasad and the potency of the Langar Prasad. So when I was sitting with Guruji, मेरा asthma attack trigger हो गया because it was a changing season in Delhi. So I said, Guruji, मुझे hospitalization चाहिए, मुझे steroid injections चाहिए. He said, "Ayu, तेरे steroid injections है." Looking at the Langar Prasad. I looked at it. I was 32. I started crying. Reduced to tears, I said, Guruji, आलू गोभी दाल है. ये कैसे मुझे ठीक करेगा? मुझे सांस आ रहा है. And I was turning black and blue. He said, बाहर जो तो जूती उतार दी है, अपने इफ्स एंड बट्स छट के आया कर. खाली होके आओ, फिर मैं ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਭਰਾਂਗਾ. Mother, he'll fill our vessel. Once we empty ourselves of our education, preconceived notions, our ahem, our vehem. When we completely empty ourselves, then he fills us with his grace. And his grace is far bigger than our being in our rat race. All of us human beings are in a rat race. मेरी मैं से बड़ी आपकी मेहर. सो हमेशा मेहर मांगो. उस टाइम नहीं समझ आती थी. सो मैं गुरुजी को बोला कि मैं नहीं खा सकती. कहते अगर आज कल्याण कराना है तो पूरा लंगर करना है. एयू तेरे स्टेरॉइड्स है. I ate forcefully. As I bowed, telepathically I said, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी. गुरुजी immediately responded, कल आ जाए, कल्याण कितना ऐश कर. I looked at him, I said, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या ऐश करूं. तो I said, यहाँ से तो मैं सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी. गुरुजी कहते हुन हस्पताल जान दी लोड़ नहीं. कार जा आराम नाल सो, कल्याण कितना ऐश कर. एंड हाथ के साथ ऐसे किया. मैं घर गई. मुझे अस्थमा अटैक दोबारा कभी नहीं आया. I was never hospitalized for asthma ever again after that grace that Guruji showered upon me. It was a big one. I could not breathe since birth. My childhood was very difficult. I was more in than out of hospitals. And I could not participate in school activities. Being the only colored girl in a white classroom, I was anyway, I stood out like a sore thumb. I was anyway kind of an outcast. And then not being able to participate with the white girls made me stand out even more. So I had no sense of belonging as a child, and I struggled with my health. But on meeting Guruji, it was transformational, life altering, life defining. That is one of my life defining moments. And there are many, as many Sangat would vouch for that. There are many life defining moments with Guruji because he really rewrites our destiny. So Guruji ने एक चीज बहुत emphasize की थी कि soul to soul connection बनाना. There are no mediators between you and your Guru. So there are no mediators between you and your Guru. This has to be emphasized because it's a direct connection, soul to soul connection. अपना connection बनाओ. कैसे connection बनाना है? Telepathically गल करो, मैं सब सुनना. So कैसे telepathically connection बनाना है? Literally, when you have the Sarup in front of you, or you don't have the Sarup in front of you, you are in any situation, any hardship. सिर्फ को गुरुजी मुझे प्लीज ऐसे कर दीजिए, गुरुजी प्लीज वैसे कर दीजिए, जैसे भी बात करें, गुरुजी आई लव यू, गुरुजी चलिए मेरे साथ. Incorporate him in your day-to-day life. गुरुजी चले, मूवी के लिए चले, गुरुजी मैं जा रही हूँ कॉफी पीने, चलोगे? Make him an integral part of your being. Because Guruji ने कहा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ. He is with us and he is within us. And if we make him a part of our existence, then he hears everything. And it's a proof. So many sangat give us कि जब हमारा दिल कर रहा है कुछ खाने के लिए, छोटी चीज बता रही हूँ, तो immediately कोई आएगा कहेगा मुझे उस दिन, I mean it's a reality. I've never eaten mangoes in my life. But when this season came, Guruji only puts the thought maybe mangoes were good for me. So this year, for the first time, I had a craving for mangoes. And before I could even say mangoes, my neighbor said, I'm sending you mangoes. So this is how quickly, how rapidly, how swiftly he hears us. Just keep your connection simple, pure, honest, sincere. Man hoy changa te nalke da pani vi ganga. Guruji used to say man saaf hoy na, क्योंकि मन साफ रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि रब ਤੁਹਾਡੇ अंदर तद ही बसता है.
मन साफ रखो, चलाकियां च नहीं रब मिलते। एक बार मैं बैठी, मैं कहा गुरुजी मुझे, मैं दिल्ली में आई हूँ, मैं मैनचेस्टर से आई हूँ। आई हैड अ फेयरली sheltered life in Manchester. Of course, I had Orthodox parents. They were concerned. I was a girl growing up in a Western world. So they were quite protective. So I was not really exposed to the world. So I said, and when I came to Delhi, Delhi has a mixed bag of people, you know, colorful, non-colorful. So I said, Guruji, मुझे थोड़ा सा चलाक और चुस्त बना दो ना। कहते जिसका तू हगिया ठीक है, भोलिया दा रब होंदा है। So when he said that, I did not understand his words. I said, नहीं पर मुझे तो चुस्त बनना है ना, मुझे तो चलाक बनना है। चलाकियां बस सुनना रब मिलते ने, चलाकियां विच कुछ नहीं रखा। Long term gains are only in being simple, being honest, being integral to your guru's teachings. Be in alignment with his teachings. गुरुमुख बनो या मनमुख बनो। गुरुमुख बनोगे तो गुरु जी पता नहीं कहां से कहां ले जाते हैं आपको, चार चांद लगा जाते हैं फॉर योर एवरी एफर्ट यू मेक। मैं आज आर्टिस्ट और कैलीग्राफर हूँ, थोड़ी सी राइटर भी हूँ, लेकिन whenever I do something I say गुरु जी आपने इसको ब्लेस करना है, because with his blessings everything becomes beautiful. And then I have always reminded myself of the affirmation, I am too blessed to be stressed. जब हमारे पास गुरु जी है, रब है, तो सब है, कोई कमी नहीं है हमारे में। तो हमेशा अबंडेंस में देखो अपनी लाइफ को, सी योर लाइफ ओवरफ्लोइंग विद हिज ब्लेसिंग्स। कभी कंप्लेन नहीं करो, शुक्र करो, फिक्र ना करो और जिक्र करते जाओ। सो गुरु जी ने कहा था 12 ज्योतिर्लिंगा ते समान में शक्ति पाई है बड़े मंदिर च। और आज अगर हम देखें तो बड़े मंदिर में इतनी शक्ति है कि गुरु जी कहते बाहरों भी कोई मत्था टेक लेगा ते ओदा कल्याण हो जाएगा। सो एक दिन गुरु जी ने कहा, जब हम बैठे थे उनके साथ, गुरु जी ने कहा तो रब आया है पर रब की कदर नहीं हुई, तुम अपनी शॉपिंग लिस्ट लैन दो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं मैं कौन हाँ। जो लाइनें लग जानी ना बड़े मंदिर, तद समझ आएगी कि रब आया सी पर रब की कदर नहीं हुई। तुम दुनिया की चीजा मंगते हो, असली चीज तो कोई नहीं मंगता। दुनिया की चीजा मंगते रहते हो पर असली चीज रब को रब मंग लोगे तो दुनिया की चीजा थोड़े पिछे पिछे दौड़ेगी। जाओ आप मंदिर, मुझे डेज लिखा हुआ था गुरु जी ने। गुरु जी ने कहा था थर्सडे जरूर आया कर वड्डे मंदिर। तो आई ट्राई इफ आई एम नॉट ट्रैवलिंग, बट अगर मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ, गुरु जी की मेहर है, कहीं ना कहीं मुझे थर्सडे को सत्संग मिल जाता है। तो लेकिन ये मेरा भाव है कि थर्सडे गुरु जी प्लीज चाय प्रसाद या कुछ पिला दो, समोसा प्रसाद खिला दो ट्रैवल में भी। यहाँ होती हूँ दिल्ली तो ट्राई करती हूँ कि मैं थर्सडे को बड़े मंदिर जरूर जाऊं। एक डिसिप्लिन, एक मर्यादा के साथ हम अपनी जिंदगी जिएंगे तो बहुत सुकून है उसमें। तो गुरु जी की तो हर चीज में रस है। गुरु जी कहते ना कि शॉपिंग में भी रस है नीता, गॉसिप में भी रस है, हर चीज दुनिया च रस है। कान का रस, शॉपिंग का रस, यू नो, चीटिंग में भी रस मिलता है कई लोगों को। तो लेकिन जो ये रब का रस है ना, जो भगवान का रस, उसकी जो वाणी का रस है, वो बड़ी दूर तक जाता है। तो ए रस ले लो, क्योंकि ए रस ना थोड़े नाल जाएगा, नाम की कमाई थोड़े नाल जानी है, बाकी सब कुछ इत्ते ही रह जाना है। असली चीज मंग लो, रब तो देन आया है पर सानू लेना ही नहीं आता। सच्चाई को भी हम झूठ कर रहे हैं आजकल। इट इज वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज हमने जो रियल है, जो गुरु जी हैं, उसको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पता नहीं लोग क्या डाल रहे हैं। एंड गुरु जी ने तो कोई वचन दिए ही नहीं थे। देयर वाज नो रियली डिस्कोर्सेस दैट ही यूज्ड टू गिव। It was very practical teachings. But today we see that Guruji's mouth is moving. If we don't encourage these kind of activities, then they will stop on their own. The balloon, the air will be out of the balloon and it will deflate. Right now, it's people are experimenting, I think, with Guruji's Sarups, and then they are adding AI to it, and they're adding messages which are not Guruji's messages. Guruji के जो messages होती हैं वो आपको direct मिलेंगे, direct connection के साथ. So Guruji could foresee this, I guess, with his infinite vision. We have a myopic vision, but कहते थे ना गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ दीवार तक नजर आता है, मैनू बहुत दूर तक नजर आता है. So Guruji probably saw कि AI आएगा, सोशल मीडिया में लोग डालते रहेंगे, पर कहते थे तुसी अपना गुप्त पाठ करो, अपना सोल टू सोल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। वही हो जाता है कि अपना कनेक्शन बना रहा है रब के साथ। और ये जितनी हम डिस्करेज करेंगे ना लोगों को कि ये नहीं डालिए, और हम एंटरटेन नहीं करेंगे, तो अपने आप ये डिसिपेट होता जाएगा, डिफ्लेट हो जाएगी इसकी स्ट्रेंथ।
So Guruji has given us the beautiful platform of satsangs. And satsangs भी आज कई हैं जो with a social element to them, पर कई हैं जो बहुत beautiful है with गुरु जी इस मेहर उन्होंने सेवा दी हुई है कि जगह जगह जाएंगी तो सत्संग करेंगे. So I'm saying it with all humility. मैं सत्संग दुबई में भी देखती हूँ जैसे हो रहे हैं, या लंदन में, या न्यूयॉर्क में, या यूरोप में. तो जैसे बच्चे कर रहे हैं, इट इज सो ब्यूटीफुल. तो छोटा सा सत्संग करते हैं आपस में, गुरु जी का स्वरूप लगाते हैं सिंप्लिसिटी के साथ. There's no rituals, no superstitions, no वहम, no अहम, जो गुरु जी कहते हैं मैं दूर करना है ਤੁਹਾਡੇ. So with simplicity बैठते हैं, गुरबानी प्ले करते हैं वो, एंड भजन भी लगाते हैं. तो ये जब होता है सारा, तो अपने आप कनेक्शन, गुरु जी कहते हैं ना, आंदे रहा करो. आंदे रहना, कनेक्शन लगाना इन द प्लेटफॉर्म ऑफ सत्संग, आपको अपने आप समझ आता है कि पहले तो हमारे अंदर क्या वैर है, हमारे अंदर क्या मैल है, और फिर समझ आता है कि अच्छा मैं अपनी जजमेंटल माइंड को छोड़ दूं और मैं गुरुजी के राह पे चलूं, तो अपने आप गुरुजी खींचते हैं अपनी तरफ और वो कनेक्शन आपका डीप होता जाता है. सो इट्स अ जर्नी. ये इंस्टेंट को कॉफी के लिए नहीं है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है. ये जर्नी है जो आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है गुरुजी के साथ जोड़ने से, जुड़ने से, और सत्संग में आने से. चाहे वंस अ वीक हो, वंस अ फोर्टनाइट हो, बच्चे काम कर रहे हैं सारे. सो गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल है. गुरुजी हमारा भाव देखते हैं. ही नोज आवर हार्ट, ही नोज आवर सोल. सो ही डजंट से तुसी रोज आके बैठ जाओ. पहले इनफैक्ट गुरुजी शाम को बुलाते थे हमें, घर गृहस्थी पूरी करके, काम करके, तब बिठाते थे शाम को कि हूं तुसी रब ना बैठो और समझो. और समझना, सबकी अपनी सोच अलग है, सबने अपनी समझ अलग है, मर्यादा एक है, तो मर्यादा फॉलो करना बहुत जरूरी है. So honestly, when we started in Manchester, like गुरुजी ने 2007 में, एक हफ्ता पहले उनके मास समाधि से पहले बोला था कि नीता तेरी सेवा है, तू सत्संग कितना कर. एंड द फनी पार्ट इज मुझे बोलना भी नहीं आता था. मैं एक बार जब गुरुजी ने मेरा कैंसर ठीक किया तो कहते खड़े होके सुना किस्सा तेरा कैंसर ठीक कितना है. मैं नर्वस होके बोली, गुरुजी ने ठीक कर दिया और बैठ गई. और फिर मैंने कहा गुरुजी दोबारा मुझे सत्संग ना करवाना. और एक हफ्ता पहले जाने से पहले कहते तू सत्संग करेंगी. मैं कहा गुरुजी मुझे तो करना नहीं आता और आपने भी बोला मुझे नहीं आता. कहते तू खड़ी होंगी, मैं करांगा. Now when then he said तू वापस मैनचेस्टर जा और माँ दी सेवा कर और उसे सत्संग करें. So we started the satsangs, a handful of us, and believe you me, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ हम गुरुजी का दरबार लगाते थे. कोई फ्लावर्स नहीं, just vases on either side, सिंप्लिसिटी के साथ और प्रैक्टिकलिटी के साथ. क्योंकि बच्चे काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो अगर उनको दरबार लगाना है, बहुत ज्यादा एम्बेलिशमेंट्स लगानी है, वो नेसेसरी नहीं है. वो सिंप्लिसिटी के साथ एक गद्दी रखिए, गुरुजी का स्वरूप रखिए, 2 वाजेस रखिए, रुमाला रखिए, जैसे भी आपका भाव है. एंड बिकॉज बच्चे आर प्रैक्टिकल. एंड फिर गुरबानी बाय एंड लार्ज आई वुड से 2 घंटे का है तो मे बी 1 घंटा गुरबानी एंड 1 घंटा भजन इफ यू वांट. अगर 2 घंटे का गुरबानी करनी है, ग्रेट, यू ऑन दैट लेवल, इट्स फैंटास्टिक. पर अगर आपने अदर भजन्स बजाने हैं लाइक सिद्धार्थ मोहन और निकलबेरी or whoever, I mean I don't want to name because there's so many today who are blessed souls by Guruji. Everybody is blessed, सब गोबिंद है. गुरुजी used to say कि अंत में जब तुम्हारा कनेक्शन बहुत डीप हो जाता है. जब मैं 80s का म्यूजिक भी सुनती हूँ, चाहे एल्टन जॉन हो, फिल कॉलिंस हो, या लता मंगेशकर हो, या किशोर कुमार, उसमें भी मुझे गुरुजी नजर आते हैं. सो एंड में हमने अपने ग्रेजुअली इवॉल्व होना है और ग्रेजुअली हमने अपनी कनेक्शन भगवान के साथ बनाना है. सो वी नीड टू डीपन आवर ओन connection and our own connectivity. So, and langar prasad, as I said, is truly our medicine. So, langar ka bhog laga ke फिर langar serve कीजिए and सत्संग को शेयर करें. So, ये मतलब मर्यादा है सत्संग की. आप गुरबानी सुनिए and then you have the langar prasad as medicine. और इसमें भी निगोशिएशन नहीं होनी चाहिए कि आधा दे दो या कम दे दो, ये कैलोरीज हैं. कैलोरीज नहीं है, गुरुजी ने प्रूव कर दिया अगेन एंड अगेन कि आपकी दवाई है. नॉट टू से ओवर भी इंडल्ज करिए. एक दाल, एक सब्जी एंड चपाती, इट्स मोर देन इनफ, एंड चाय प्रसाद
एंड यू डोंट इवन हैव टू कीप समोसा प्रशांत. इंग्लैंड में तो हम रखते थे, एक सैंडविच रखते थे गुरुजी भाव देखते हैं. प्रैक्टिकल बनो, जो भी हम गुरुजी को ऑफर करेंगे वो सैंडविच भी उनका, चाइनीज भी उनकी, इटालियन फूड भी उनका, इंडियन फूड भी उनका, सारी सृष्टि गुरुजी है. तो हम उनको क्यों छोटा कर रहे हैं कि सिर्फ समोसा रखना है या सिर्फ जलेबी रखनी है या सिर्फ यू नो व्हाटएवर. कीप इट, बी फ्लेक्सिबल. इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ बैलेंस. इन द एंड गुरुजी कहते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक करन आया. जब वो मेरा कैंसर भी ठीक कर दिया, अस्थमा भी ठीक कर दिया, गुरु जी कहते ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਇਆ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ. तो नानक दुखिया सब संसार, गुरु जी यूज्ड टू से कि कोई ना कोई कष्ट हर इंसान ਨੂੰ है. कोई फाइनेंशियल कष्ट है तो कोई इमोशनल कष्ट है, यानी कि रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं या टूट ना भी रहे हो, लाइक यू नो हमेशा कोई स्ट्रेन रहता है. एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी बहुत बड़ी बीमारी होती है, या हमारा फिजिकल बीमारी होती है. सो ये गुरुजी को पता है हम किस लिए आ रहे हैं गुरुजी के पास. ये तो नहीं कि हम बोलते हैं, गुरुजी को बताने की जरूरत भी नहीं है, गुरुजी को सब पता है. गुरुजी इसलिए उससे से कि वर्बली जब हम बैठते थे वहां रब ਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ बैठे रहो, ਦੱਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ रब ਨੂੰ. ठीक है, महापुरुषों ਨੂੰ सब पता है, ਦੱਸੇ ਦਾ नहीं ਹੁੰਦਾ. So you know गुरुजी knows why we there. That's the telepathic. मनी मन तो बोल रहे होते हैं कि गुरुजी मेरा आज जैसे बहुत सर्वाइकल दर्द हो रहा है, गुरुजी ठीक कर दो. Naturally, we are human, so we are asking. मानो मांगो नहीं बोलते हैं, पर हेल्थ तो मांगो. सो गुरुजी को पता है किस भाव से हम आ रहे हैं, तो वही लंगर हमारी मेडिसिन बन जाती है. वो जब मेडिसिन बनती है, आपके फाइनेंशियल कष्ट भी कट रहे हैं, आपके इमोशनल भी और आपके फिजिकल भी, 3 लेवल्स में चलते हैं. तो इस पे एक्चुअली इफ आई मे इस पे कंटिन्यूएशन करूं तो कर्मा भी हमारे 3 लेवल पे बनते हैं. हमारे थॉट, वर्ड एंड एक्शन. थॉट में होता है कि हम किसी की निंदा कर रहे हैं बैठे बैठे, कई बार सत्संग में भी हो जाता है. मैं आपको फनी सत्संग सुनाती हूँ. मैं दुबई में थी और दुबई से मुझे अबू धाबी दूसरे दिन जाना था, तो वहां भी सत्संग था. सो सैटरडे को दुबई गई और एक सूट पहना, एंड दूसरे दिन संडे को हाउसकीपर नहीं आती, तो मैंने सोचा चलो वही सूट पहन लेती हूँ. और पहनते पहनते मैं सोच रही थी कि अगर वो कोई संगत तो होगी नहीं दुबई से, पर अगर हो गई तो उसने देखा कि सेम सूट पहना हुआ है. पर आई सेड इट्स फाइन. वही हुआ, मैं अबू धाबी पहुंची तो मैंने वही सूट पहना हुआ और वही संगत वहां बैठी हुई. एंड वो संगत ने ज्यादा गुरुजी पे ध्यान नहीं दिया, वो मेरे पे ही ध्यान दे रही थी और सोच रही होगी मन ही मन. मैं भी, मुझे पता था वो क्या सोच रही है कि मन ही मन वो यही सोचे कि मैंने अनीता के पास कोई सूट नहीं है. सो मैंने जब खड़े होकर सुनाया, मैं कहा हम 2 मिनट में लोगों को जज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता था वो क्या सोच रही है. वो हंसने लग गए और वो इतनी जोर से हंसी संगत के अमिस्ट. कहती है मैं वही सोच रही थी कि नीता के पास सूट नहीं है और तूने वो बोल दिया. तो कहती है लेकिन मैं तो मजाक में सोच रही थी. तो ये होता है. हम सत्संग में भी गुरुजी यूज्ड टू से आओ मेरे ते ध्यान दो, अखा बंद करके बैठो, नहीं तो हम संगत को देखेंगे तो थोड़ी सी जजमेंट हो ही जाती है. इसके इसने आज बाल नहीं बना के आई, पाँव नहीं धो के आई, यू नो वी आर ह्यूमन. सो अगर मैक्सिमाइज करना है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, मैक्सिमाइज करनी है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो सिर्फ उन पे ध्यान दीजिए, सत्संग में ध्यान दीजिए. गुरबानी के थ्रू बहुत आंसर्स मिलते हैं आपको. दिस से ना गुरबानी इज हिज आंसर्स टू अस एंड भजन्स आर आवर लव फॉर हिम. सो वी आर सिंगिंग आवर यूलॉजी टू हिम, बट थ्रू गुरबानी ही गिव्स हिज आंसर्स टू अस. सो वो दोनों ही बैलेंस है. मेरा फेवरेट है ये कि रखी चन्ना दे कोल एंड देन स्वांसा दी माला ना सिमरा तेरा नाम. And there's another one which says, Bijalo, Naam Bijalo, right? It's a beautiful one. And क्योंकि हमने बहुत जन्म बिसरे थे माधो, because हमने इतने जन्म लिए और खत्म हो गए. अब इस जन्म में हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें असली गुरु महापुरुष भगवान मिले हैं, जो धरती पे आके हमें उठाने आए हैं. Uthane means he's come to uplift us, he's come to elevate us, he's come to take us onto the right path. So हमें खुद ही realize नहीं होता हम कितने blessed हैं, and इसलिए हम कभी कभी गुरु जी को take it for granted भी कर लेते हैं. पर उनको याद करो, प्यार करो और उनके आगे ही झुको. फिर दुनिया के आगे झुकना नहीं पड़ेगा अगर गुरु के आगे झुक के आप. आई फील कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना.
वो टाइम जब आपको सच्ची मुच्ची वो दिखावा हो जाता है, वो गुप्त नहीं होता है ना, फिर वो दिखावे का पार्ट हो जाता है, दिखावे का हो जाता है। देखो मैं ये किसी फलाने के सत्संग आई हूँ, मैंने ये पहना हुआ है, अपना हमारे अंदर जो ईगो है वो फिर ड्रॉप नहीं होती है, और हम तो ईगो ड्रॉप करने आए हैं। जब हम ह्यूमिलिटी के साथ सत्संग में बैठ जाते हैं, कोई कैमरा नहीं, कोई वीडियो नहीं, तो हमारे क्योंकि वाइब्रेशंस, एक बार मुझे ही डांट पड़ी थी, अपना ही सुना सकते हैं हम। तो मैं गुरुजी के पास बैठी और मेरी बेटियां फोन कर रही थी मुझे, तो गुरुजी कहते किधर फोन है। हमने फर्स्ट हैंड ये चीजें सीखी हुई हैं गुरुजी से, दैट्स व्हाई वी एक्सरसाइज डिसिप्लिन। सो मैंने कहा गुरुजी मेरी बेटियों का फोन है, कहते फिर फोन दी वाइब्रेशन लेना, मेरी वाइब्रेशन चढ़ दे। तो मतलब उसके बाद मुझे समझ आई, अब जैसे लोग जाते हैं सत्संग में, वो वीडियो ले रहे होते हैं पूरी संगत सत्संग का, तो उनका टाइम जो कनेक्शन डालने का था गुरुजी के साथ, बनाने का था, वो तो उन्होंने लूज कर लिया ना। आपने क्या पाया? और वो वीडियो हम कभी देखेंगे नहीं दोबारा, एक बार देख के हम भूल जाएंगे वो वीडियो को। लेकिन जो गुरुजी से पाया वो तो हमने पूरी लाइफ के लिए ले लिया ना। तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और सेल्फीज तो इज एन एब्सोल्यूट नो नो। मैं एक सत्संग गई गुड़गांव में, उसके बाद मैं गई हूं नहीं, सॉरी गुरुजी, बिकॉज सत्संग मेरे लिए बहुत सेक्रेट स्पेस है। वहां वो मेरे लिए एक स्कूल है, एक क्लासरूम है, जहां मैं कुछ सीखने जाती हूँ, अपने बारे में सीखने जाती हूँ। दुनिया को क्या करना, हमने हमने अपने आप को ही बदलना है, वही बहुत है, अपने आप को सुधारना है। तो मैं गई तो 3-4 लड़कियां अपने बहुत ओवर ड्रेस्ड बैठी हुई सत्संग में, ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा था गुरुजी में, और सेल्फीज ले रही है अपनी। एंड आई वाज शॉक्ड एंड डिस्गस्टेड टू बी ऑनेस्ट। आई सेड दिस इज नॉट अ फ्लैट प्लेटफॉर्म फॉर engaging yourself in social activities. This is purely sacred. And ये जो sanctity of the satsang है ना, वो maintain करना बड़ा जरूरी है। The sanctity, silence, and with that spiritual भाव। एंड और कुछ है ही नहीं सत्संग में। गुरुजी ने तो उल्टा रिलीजन को सिंप्लीफाई कर दिया। रिलीजन हमारे बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मंडे को फास्ट। मैं अंगूठियां पहनती थी, इफ आई मे सी आइडियली, and in his parlance, I remember, if I may reverse a little bit and go back to the time when he cured me of my skin, right? He said, "Tu पिछले साल astrologer को गई सी?" मैं क्या, हाँ जी गुरुजी गई थी, and I was quite sheepish about it. And he said, उन्हें की क्या सी? तो by this time I knew that I love गुरुजी, and मुझे इधर उधर जानने की जरूरत नहीं है, but I said, पर बहुत भटकी थी उससे पहले। तो I said, गुरुजी, कहते हाँ हाँ दस की क्या सी उन्हें। मैंने कहा गुरुजी, कहते उन्हें क्या सी, तेरी कोई लाइफ नहीं सी December 97 के बाद, उन्हें सही क्या सी, पर हुण दस कौन वड्डा, तेरा गुरु या तेरा एस्ट्रोलॉजर। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਥਰੀ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਬਦਲਣਾ। So such a big thing. So before we come to Guruji, everything is pre-written. After coming to Guruji, our entire lives are rewritten. वो लेख बदल देते हैं, हमारी किस्मत बदल देते हैं, हमें ही बदल देते हैं, हमारी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड हो जाती है, हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है चीजों में, हमारा परसेप्शन बदल जाता है चीजों में। गुरुजी ने नजरिया बदल दिया। अब हम हर चीज में थैंक यू बोलते हैं, शुक्राना करते हैं गुरुजी का। सो लेकिन शुरू में जब मैं आई थी तो मेरे बहुत रिंग्स थे, इनफैक्ट 4 रिंग्स या और 4 या, तो मैं 8 पहनती थी। तो ऐसे गुरुजी बैठे हुए, मुझे वो सीन अभी भी क्रिस्टल क्लियर याद है। और मैं यहाँ बैठी थी, गुरुजी कहते ए कादे वास्ते है। मैंने कहा गुरुजी है मेरे हेल्थ वास्ते है। अच्छा, तो ओ वाला के वास्ते है। मैं कहा गुरुजी वो हेल्थ के लिए है। ए वाला, मैं क्या गुरुजी है मेरे मैरिज वास्ते। फिर किस तरह चल रहा है? मैंने कहा गुरुजी तीनों ही चीजें क्लैप्स कर रही हैं, फिर की फायदा। ऐसा कर, ऐसा सारा कुछ उतार और उत्थे यमुना जाके बहा दे। किसी संगत को बुलाया कि एनू ले जाओ अनीता नू राती 12 बजे, ते उत्थे ना यमुना सारी अंगूठिया दी बहा दो, इमर्स कर दो उसमें यमुना में। कहते एयू तो तुहाडे मैं दूर करन आया, तुहाडे वहम और तुहाडे अहम। तो तुसी वहमां च पाई रहंदे हो, प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कि रब है। प्रैक्टिकल लाइफ में ही हमारे गुरुजी हैं, हमारे भगवान है, हमारी डिविनिटी है, हमारी अवेकनिंग है, हमारी साल्वेशन है, प्रैक्टिकल में सर्विस। सो सेवा जैसे गुरुजी ने सबको दी हुई है, और वो सेवा में वो 4 चांद लगा देते हैं।
सबको सेवा दी है, पर वो गुप्त सेवा करो। अगर हम बोलते हैं मैं बर्तन साफ करती हूँ, मैं गुरु जी कहते मैं थोड़ी मैं तो हटाना आ, और फिर तुसी अपनी ईगो बढ़ाते रहते हो कि मैनू सेवा मिली हुई है, मैं बर्तन दी, मैनू सेवा मिली हुई है लंगर बनाने दी, मैनू सेवा मिली हुई सत्संग शेयर करने दी। बोलने की जरूरत नहीं होती, करते रहो अपनी सेवा, और किसी को एक्सप्लेनेशन ही दो कि क्यों आप सेवा कर रहे हो। मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, किसी संगत ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया कि आप क्या सत्संग करते रहते हो जगह जगह, गुरुजी ने बोला था सत्संग करने के लिए। तो मैं डिस्टर्ब हो गई, मैंने कहा रियली? तो फिर मैंने पढ़ा, मतलब गुरुजी आंसर भी दे देते हैं कि जो सेवा भगवान आपको देता है वो आपके कल्याण के लिए पहले है। सुनन वाला सुनान वाला दोनों तरफ मेरी लहरा चल दिया ने, मैं ब्लेस कर रहे हैं। आपके कैंसर से किसी और को होप मिल रही है, आपके दर्द से किसी और को हीलिंग मिल रही है, क्योंकि वो सोच रहा है कि वो इनका दर्द ठीक हुआ, गुरु ने ठीक किया, तो मेरा दर्द भी गुरु जी ठीक करेंगे। अगर इनके आस्थमा ठीक हो गया तो मेरा भी करेंगे। तो होप देना मैनकाइंड को बहुत बड़ी चीज है और बहुत जरूरी है। तभी जो सेवा आपको सत्संग की मिली हुई है ना, बोलने की, बुलाने की, तो आप छोड़िए नहीं। दुनिया की छोड़ो, गुरु की मानो, ये बहुत जरूरी है। आपको करेज के साथ जीना है। गुरु जी गिव्स अस द कॉन्फिडेंस टू लिव आवर ट्रूथ, टू बी आवर ट्रूथ। और ये छोड़िए सोशल मीडिया में एआई को कितना मैनिपुलेट कर रहे हैं, गुरु जी को, गुरु जी की टीचिंग्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये मैनिपुलेशन को छोड़ो और अपनाइए गुरु जी को, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। पर ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ। गुरु जी के राम को खिलौना जाना है एक शब्द जो गुरु जी खुद सुनवाते थे, और वो सचमुच रियलिटी है कई लोगों की। अपनी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए, मॉनेटरी गेन के लिए लोग यूट्यूब पे लगाई जा रहे हैं अपने, मतलब जो इंटरव्यूज है या जो पॉडकास्ट है गुरु जी के बारे में। पर ये भी गुप्त होना चाहिए। ये आज हम क्यों शेयर कर रहे हैं? बिकॉज टू क्लियर द एयर, इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लियर द एयर। आजकल बहुत क्लाउड्स है वहां पे, क्लाउड ऑफ डाउट, and then this certainty. We are here to remove those clouds and to show certainty or express certainty, to give that clarity to संगत। अगर मैं आज बोलूं, अगर मैं बोलूं ईशा मैं आपका सत्संग आज सुनाती हूँ संगत को, तो कहीं ना कहीं जाके आई विल मिस अ पॉइंट और आई विल एड अ पॉइंट, एंड उसमें क्या होगा, जो एसेंस होगा वो गुम जाएगा। जिसका सत्संग है उसी को पता है। एंड लाइक आई सेड, वो इमोशन जो होगा ना, आपके सुनाने से या मेरे सुनाने से ऑथेंटिसिटी नहीं आती जब तक आपका खुद का सत्संग नहीं है। तो किसी का सत्संग ना सुनाइए, सिर्फ अपना सुनाइए, और शॉर्ट में सुनाइए, क्रिस्प रखिए, क्रिस्प, क्लियर, with a lot of clarity, concise, be it concise, clear and honest. As I say, honesty is the word here. एम्बेलिशमेंट्स नहीं ऐड कीजिए। आजकल सत्संग भी हम सुनते हैं बहुत, जहां लेडीज बोलती हैं या जेंट्स बोलते हैं, मैं पीले कपड़े पहले पाए, फिर मैं ग्रीन पाया नहीं, फिर मैं चेंज होने चले गई, फिर बारिश हो गई, फिर मैं गई नहीं सत्संग, फिर मैं क्या नहीं जाना चाहिए क्योंकि गुरुजी कहते ने जाना चाहिए सत्संग। आई मीन एक्सक्यूज मी, अटेंशन स्पैन हमारी इतनी शॉर्ट हो गई है। कीप इट वेरी कंसाइज एंड क्लियर एंड टू द पॉइंट। डोंट एड एम्बेलिशमेंट्स ऑफ क्या बाहर का टेम्परेचर है, क्या खाना खाया हमने। Please keep it very, we don't need any drama around your satsang. We just need the meher. So again, मेरी मैं से बड़ी आपकी मेहर। Keep the focus on only Guruji, only Guruji. Especially बच्चों को मैं यही बोलूंगी कि again keep the proportion and the portion very manageable. जब हम लंगर को देखें, we should rejoice and not resent. We shouldn't say, oh इतना सारा। So keep it the way Guruji used to keep it. Very simple. एक सब्जी, एक गिल्ली सब्जी, एक सूखी सब्जी, एक थोड़ी सी चटनी if you want, थोड़ा सा salad and chapati, and embrace it. Don't resent it. Because अगर proportion manageable होगा, palatable होगा, and we can consume it with pleasure, to enjoy it, relish it, then, and for me, as I remember it, हम साइलेंस में ही लंगर करते थे, क्योंकि वो उस मर्यादा से हम खा रहे हैं, विद दैट इंटेंट
कि मेरी दवाई है, ये मुझे ठीक कर रही है, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर द मेडिसिन। आजकल लंगर जैसे सर्व होता है, संगत बातें करने लग जाए, हाउ इज योर किड्स, हाउ ओल्ड आर दे नाउ, खा रही होती है, एक तो वैसे अनहाइजीनिक होता है, एंड आप उस भाव से नहीं फिका रहे, आप सोशल मोड में जा रहे हो, फ्रॉम द स्पिरिचुअल टू द सोशल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वन अपमनशिप छोड़ दीजिए कि उस फलाने के घर सत्संग गए थे, उसने 10 डिशेज रखी हुई थी, मैं 12 रखूंगी। ये सोशल एलिमेंट नहीं ऐड कीजिए। जैसे लंगर प्रसाद होता है, जैसे बड़े मंदिर में भी होता है, सिंपलिसिटी के साथ होता है, वैसा ही रखिए। एंड बड़े मंदिर इज अ बेंचमार्क फॉर हाउ वी नीड टू कीप द लंगर प्रसाद। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्स्ट्रा नहीं दीजिए, मीठा अगर एक दिन है तो 3 नहीं दीजिए। एंड जब लंगर हो जाए तो ट्राई नॉट टू गिव केक्स एंड वट एवर, अपने घर में सेलिब्रेट कीजिए गुरु जी के साथ। पर वो सत्संग में डिस्ट्रैक्शन भी होती है, कोई टेबल नहीं आता आगे, फिर वो केक काटने में ही आधा घंटा लग जाता है, हैप्पी बर्थडे करने में ही पौना घंटा लग जाता है। संगत का टाइम वैल्यू कीजिए, रिस्पेक्ट द टाइम। ये आपका पर्सनल स्पेस है जहां आप सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी का बर्थडे, तो डोंट कीप इट। अगर रखना भी है, आई वुड से कीप इन नॉट मोर देन 5 मिनट्स। इट्स नॉट फेयर ऑन द संगत, बिकॉज संगत गुरु जी के लिए आई है, एंड ऑफ कोर्स दे विश यू वेल विद ऑल योर सेलिब्रेशंस, बट ये टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसमें तो हम सत्संग भी शेयर कर सकते हैं, गुरु जी की लंगर की बात कर सकते हैं। गुरु जी के पे फोकस रखिए, एंड अपने घर में गुरु जी के आगे, स्वरूप के आगे जितना मर्जी सेलिब्रेट कीजिए। गुरु जी कहते लौटा लिया हो, तांबे का लौटा लिया, तो गुरु जी ने ब्लेस कर दिया, कहते अद्धे ना नहाना अद्धे ना पीना, ठीक है, उस टाइम ये था। एंड पर गुरु जी उस टाइम फिजिकल में थे, गुरु थे। अब वो गुरु जी भगवान है, गुरु जी को लौटा नहीं चाहिए, गुरु जी को चेन नहीं चाहिए, गुरु जी को पेंडेंट तक नहीं चाहिए, गुरु जी को सिर्फ हमारा भाव चाहिए, हमारी भक्ति चाहिए। तो अगर हमने कुछ मांगना है तो गुरु जी भक्ति में शक्ति डालिए। ये सबके लिए लौटा नहीं होता है। अगर आपको डायरेक्ट मैसेज आए गुरु जी का किसी सपने में या कुछ कि लौटा लेना है तो फाइन, बट लौटा इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गुरु जीज फिलोसफी एंड गुरु जीज टीचिंग्स। वो लोगों ने अगेन वो एक सुपरस्टिशन बना दिया कि मैं अगर जब तक लौटा नहीं लूंगी तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती। तो ये नहीं है। लेकिन अगर आपको लौटा लेना, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए किसी चीज की, और ये नहीं सोचना चाहिए पुरानी संगत को लौटा मिलता था तो वो ठीक हो गए। वो एक, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन फेथ भी है और जो बिलीफ सिस्टम है वो तभी स्ट्रेंथन होता है जब हमें कुछ टैंजिबल मिल जाता है। अगर वो लौटा ना मिलता, हम कहते हैं कि गुरुजी ने ठीक कैसे करना हमें, ये कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ बैठे बैठे उनका ओरा ही हमें ठीक कर रहा है या खाना खाने से ठीक कर रहा है, हमें समझ नहीं थी। तो मे बी हमें कुछ टैंजिबल चाहिए था, लेकिन संगत को टैंजिबल कुछ नहीं चाहिए, इनटैंजिबल है गुरुजी। गुरुजी एक फॉर्म भी है, फॉर्मलेस भी है। तभी गुरुजी एंड में तो यही कहते थे ना कि मैं थोड़े अंदर दे गुरु ने जगाना आया, एंड ऑल्सो कि मैं फॉर्म भी हूं, फॉर्मलेस भी हूं, लेकिन ये फॉर्म से अटैच नहीं हो, क्योंकि पहले भी मैं सी, खून भी मैं तो अगे भी मैं। तो गुरुजी किस बहुत फॉर्म में आ चुके हैं दुनिया में, जब जब धरती को भारी हुई है। एंड वेन एवर मैनकाइंड इज नीडेड डिविनिटी, divinity himself is descended there. So ये lota बहुत छोटी चीज in the larger scheme of things. Don't get attached to that lota. Don't think that no, I will not get healed. I will not get that financial gain or that physical health unless I use a lota. It is not for everybody at all. गुरु जी के बर्थडे पे लोग डांस करते थे, या बैसाखी में करते थे, या मे बी गुरु नानक जी के बर्थडे में करते थे। It was not a norm. गुरुजी ऑन द कॉन्ट्री, उनके सत्संग बड़ी सूदिंग एंड साइलेंस में होते हैं, बिकॉज हमारी सोल को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। पर कई लोगों ने, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन बाय एंड लार्ज, but I'm saying some people have made it a ritual. Again, to dance in every satsang, that is incorrect, because this is not the norm. You don't have to dance. I went for a satsang many years ago where it started at 12. Until 4 o'clock, people were dancing. No langar prasad yet, nothing. So again, we are not respecting the maryada of Guruji. 12 से 2 होना चाहिए था, फिर लंगर सर्व होना चाहिए था। जिसको करना है डांस करे, but it's not a customary thing to add dance to the satsang. It's not. In fact, if I may go one step further, satsang जैसे खत्म होता है, like गुरुजी के टाइम में भी हम छोटे मंदिर में बैठते थे,
तो गुरुजी ने, जैसे लंगर होता था, गुरुजी कहते जाओ पिक्चर खत्म, कल आना, अपनी ब्लेसिंग सीधा घर लेके जाना। आज क्या हो गया सत्संग में कि लोग बैठे रहते हैं, फिर मूवीज की बात शुरू हो जाती है, फिर किसी फलाने की बात शुरू हो जाती है, निंदा भी शुरू हो जाती है। तो कहते ਤੁਹਾਨੂੰ तो मैं ब्लैस करन आया, ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लैसिंग लैनी नहीं आती, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੋਲ ਕੇ चले जाते हो, खाली होके चले जाते हो। तो घर जाओ और अपनी ब्लेसिंग्स, जितना गड़ा भरा अपने ब्लेसिंग्स का, वो घर लेके जाओ। अनीता आंटी, जब आप गुरुजी फिजिकल फॉर्म में आपने जब उनसे मिले और जब आप वहां पर इतनी संगत बैठी होती थी, वो मर्यादा वहां के सब बात कर रहे होते थे? बिल्कुल भी नहीं, तो साइलेंस होता था एंड बहुत डीप रेवरेंस होती थी गुरुजी की प्रेजेंस की, एंड कोई मीट एंड ग्रीट नहीं होता था। आजकल वो भी होने लग गया। हम किसी होस्ट के सत्संग में जाते हैं तो सबसे पहले हम होस्ट को हेलो करते हैं, फिर बाद में गुरुजी को करते हैं। सो सबसे पहले गुरुजी को करो और होस्ट को छोड़ दो, बिकॉज हम वहां होस्ट के लिए नहीं आए, सत्संग पे आए हैं। इट्स नॉट अ सोशल प्लेटफॉर्म, इट इज नॉट रूड नॉट टू से हेलो। सो जस्ट गो, टेक योर प्लेस इन अ सत्संग एंड से हेलो टू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी फॉर कॉलिंग मी। बिन पागा तो सत्संग भी ना मिलिया। तो ये सत्संग हम रियलाइज नहीं करते इसकी वैल्यू। In today's world, we know the price of everything, but we know the value of nothing. So we become cynical in this world. We just feel हम अपना सोशल कनेक्शन बनाने आए हैं या सोशल नेटवर्किंग करने आए हैं, जो हो रहा है सत्संग में। हम नंबर लेना शुरू कर देते हैं, आरती खत्म ही नहीं होती तो आंटीज एंड अंकल्स आर हगिंग ईच अदर, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। वो थोड़ा सा जो लहरें चल रही होती है ना गुरु जी की, वो फिर थोड़ी वेव्स जो होती हैं वो हिल जाती हैं, एंड हम मैक्सिमाइज नहीं कर पाते जो गुरु जी के ब्लेसिंग्स हम रिसीव करने को चाहते हैं, बिकॉज इट्स ऑल एनर्जी, राइट? सो वी आर एक्चुअली डिस्टर्बिंग दैट एनर्जी। अनीता आंटी, आज लोग महाराज बड़ा मंदिर हमारे लिए बना कर गए, बड़ा मंदिर के बारे में आप बताएं, हाउ इज दिस पावरफुल मंदिर एंड क्यों बड़ा मंदिर जाना इज वेरी। तो मुझे तो बोला गया था कि एवरी थर्सडे आना, एंड बड़े मंदिर में बहुत शक्ति है। सो 12 ज्योतिर्लिंगा के समान मैंने शक्ति पाई है, तो वहां जाना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बिकॉज इजी नहीं है जाना। एक तो दूर पड़ता है लोगों को, और एक ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है दिल्ली में। तो ये चैलेंजेस ओवरकम करके वो एक धाम सा बन गया बड़ा मंदिर। सो वहां जाना ही आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप अपने सोल के लिए जा रहे हो, अपने बच्चों के लिए जा रहे हो, अपनी फैमिलीज के लिए जा रहे हो, माँ बाप के लिए जा रहे हो। एक बंदा भी जानता है, गुरु जी यूज्ड टू से, मैं पूरी फैमिली नु ब्लेस कर देना। और ये कभी ना घबराइए कि मैं आती हूँ, अकेली आती हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं आता, या मेरे बच्चे नहीं आते हैं, या मेरे पेरेंट्स आ नहीं पाते हैं। उसमें इतनी शक्ति है कि एक बंदा भी आता है तो पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता है। लाइनों में लगना, गुरु जी कहते कर्म करते नहीं उस टाइम भी, यू नो, उस टाइम भी आप अपना मंत्र जाप करो चलते चलते। गुरु जी एंड में तो यही बोले थे प्रैक्टिकली कि चलते फिरते भी मैनू याद करो, मंत्र जाप थोड़े अंदर ही अंदर चलते रहना चाहिए। आप लाइने में लगे हुए हो तो उसमें भी आप लगे हुए हो, लेकिन भाव आपका गुरु जी की तरफ ही है, और आप मंत्र जाप करते जा रहे हो मन ही मन। आपका पाठ आपके अंदर चलते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो लोग कहते हैं ना पाठ कैसे करें, जैसे जैसे आपकी अंदर की प्योरिटी आती जाएगी उतना डीप आपका कनेक्शन डिविनिटी के साथ होता रहेगा। द मोर प्योरिटी द मोर डिविनिटी, इट गोज हैंड इन हैंड। सो यू नो, we have to do the inner work, we have to walk the talk, we cannot take Guruji for granted. So even going to the mandir, if I say bada mandir bahut zaruri hai, वहां बहुत शक्ति, और मैं जाऊं ही ना, I'm not walking the talk. So I must walk the talk and lead by example and be exemplary to his grace, to his supremacy. Of course words fall short, हम काबिल ही नहीं अपने सत्संग सुनाने में भी, लेकिन हम सुनाते हैं ताकि a ray of hope मिले किसी को। बहुत जरूरी है वो भी सुनाना, लाइक आई सेड, क्रिस्प, क्लियर, कंसाइज। एंड आप जाओ, लंगर करो, शब्द गुरबानी सुनो, जो भी सुनवा रहे हैं गुरु जी वो सुनो, भजन सुनवा रहे हैं बड़े मंदिर में वो भी सुनो। उसमें भी आपको कहीं ना कहीं तो आंसर मिलेगा ही ना। आपको या तो आंसर मिलेगा या आपका भाव जाग उठेगा, कोई ना कोई तो बेनिफिट मिलेगा ही। इन द ओशन
एक ड्रॉप में मिल गया तो बहुत है. So he said three things. He was sitting and he said, Nita, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ. डिवोर्स, कैंसर, द डिप्रेशन. तो आई लुक्ड एट गुरु जी, ऐसे गुरु जी ये तो इंग्लैंड में होता है जहां से मैं आई हूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है. इंडिया में ना कभी डिप्रेशन सुना है, ना कैंसर सुना, ना डिवोर्स सुना. कहते कमी देखी अगे जाके घर घर की कहानी होनी है, वन और दी अदर. सो आज वो एक रियलिटी बन गई हमारी. ये एक हार्श रियलिटी है, अगली रियलिटी है, बट नेवरदलेस रियलिटी है. देखो नेक्स्ट थॉट दैट आई एम गेटिंग इज, अब इससे कैसे बचें? कलयुग है, गौर कलयुग है, कलयुग की हवा से हम कैसे बचेंगे? सो बारिश होनी है तीन चीजा दी, गुरु जी ने बोल दिया, ठीक है. बारिश होनी है कैंसर दी नीता, बारिश होनी है डिवोर्स दी, बारिश होनी है कैंसर दी, कैंसर, डिवोर्स, डिप्रेशन की, ठीक है. नाउ संगत विल आस्क कि लेकिन हम कैसे बचेंगे कलयुग की हवा से? ये कलयुग की बीमारियां हैं, ये होनी है, इट्स इनएविटेबल. How do we save ourselves from the inevitability of these things and much more? So Guruji used to say, पाठ बचाएगा दोनों, पाठ करो, रब नू याद करो, रब नू प्यार करो. Be God loving and not God fearing. रब से डरने की जरूरत नहीं होती, अपने कर्मों से डरो, अपनी गलतियों से डरो, अपनी सोच से डरो जो गलत सोच होती है. जो गुरुजी ने आपको दिया, देखो मुझे तो दिया शिव पुराण पढ़िया कर और मंत्र जाप किया कर. तो मंत्र जाप जो है हम रियलाइज नहीं करते, इट इन्वोक्स दैट डिवाइन एनर्जी विद इन अस. सो व्हेन वी डू ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिवजी, while I keep repeating that mantra, it invokes the divine energy within me. It invokes the divine Shivji ki energy within me, and that gives me shakti, gives me courage, it gives me confidence. So people need to understand why we do a mantra also. Not to do it blindly or to do it mindlessly, but to understand when I do it mindfully and I'm doing Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sai, repeatedly, it eventually evokes that feeling of divinity within me that gives me tremendous amount of anything that I'm lacking, whether it's courage, confidence, self-esteem. So this is very important to live a practically good life and being the best version of who we are. We are here to live out our karmas. So every youth and every person of my age, we all have aspirations, we have our dreams, we have our ambitions, but Guruji makes them happen with honesty and integrity, and we get strength and confidence to knock on doors which were previously closed to us. So even the youth of today who's striving to thrive, everyone is striving to thrive. We need to have God walk beside us to get the best results. See, whatever niyam you create for yourself, discipline for yourself. अगर मुझे evening suit करता है, for instance, after I've had a bath, I strangely or inexplicably I don't do part. The evening when I'm relaxed, I will get my Shiv Puran out. I will read. I read the Hanuman Chalisa also. I believe this is the year of Hanuman, and Hanuman gives you a lot of courage. So I've started, and Guruji only planted the thought in me कि Hanuman Chalisa par. Maybe I need that energy. So I read it. Now there is no fixed ritual. जब जागो तब सवेरा. अमृत वेला उस टाइम गुरुजी ने कभी ऐसे एडवोकेट नहीं किया, बट ऑब्वियसली वी वर नॉट इवन ऑन दैट लेवल. इतना ही बोलता कि हम सत्संग आए, गुरुजी के पास बैठे, गुरबानी थोड़ा सा सुने, जो समझ आती थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती थी, डांट भी पड़ती थी गुरुजी से, तू सुनती नहीं है. मैं कहा गुरुजी मुझे समझ नहीं आती. कहते समझ लो किसने क्या, सिर्फ सुनिया कर. So the vibrations of that Gurbani is healing us on the soul level. So there is no time. Every moment you are awake is an awakening if you are in part. Because all 24 hours is God's. And He has granted us this time for our evolution, spiritual evolution. I think each Sangat is doing whatever satsang they do with all their heart. Okay? It is non-ritualistic, of course. Guruji used to say himself कि एंड में तो गद्दी की भी जरूरत नहीं पड़ती ना ईशा. It's all our love and our bhakti that is in our heart, and it's our practical living. Even if I make an art piece today, I make a painting, if I do it with love, that is my bhakti, because I'm in meditative state. I am focusing on my work. So that is my bhakti.
So bhakti is translated into many different things. So this becomes a very small thing. There are no do's and don'ts. If I feel like keeping 10 flowers instead of one, it's my bhav, it's my bhakti, it's my wish and my creativity. So let it be an individual thing. Some say ज़्यादा decoration क्यों कर रहे हैं लोग, या some say क्यों कम कर रहे हैं. There is no right and wrong. Only your, कहते हैं ना, सिर्फ देखने का नजरिया गलत होता है, not the act. And of course, don't make it ritualistic. Don't make it ritualistic. कि नहीं हमने दरबार सजाना ही सजाना है. You don't have to. Keep it simple. So I feel we are also a ball of energy. और हमारी भी एक वाइब्रेशन होती है इंसान की, ठीक है? When we are low, we're in fear, we're in, say, feeling dejected or rejected in life, our vibration drops. ना मंदिर की, गुरु जी की मंदिर की वाइब्रेशन जो होती है या सत्संग की वाइब्रेशन होती है, वो बड़े हाई एनर्जी में होती है, हाई वाइब्रेशन होती है. तो हम यहाँ होते हैं, वाइब्रेशन यहाँ होती है, और जब हम यहाँ एंटर कर रहे होते हैं ना हाई वाइब्रेशन में, हमारी वाइब्रेशन भी यहाँ आ जाती है, और जब यहाँ आती है और हम निकलते हैं, we are ready to face the world with so much more power, with so much more confidence. We recharge. It's a battery recharge. So, because Kalyug Hava cannot recharge our batteries. Only in Kalyug, Guruji ने इसलिए सत्संग की घड़ियां हमें दी हैं, क्योंकि सत्संग से ही हमारी एनर्जी एलिवेट हो जाती है. And we are ready to again march forward, soldier on. बैटल्स सबके घर में है, बैटल्स सबके अंदर भी है, बाहर भी है, पर वो बैटल्स को फाइट करने की एनर्जी आ जाती है. 97-98 में जब भी मैंने आना शुरू किया, तो मैंने फर्स्ट थिंग मांगी कि गुरुजी मेरी मैरिज ब्रेक हो रही है, तो इसको मेंड कर दीजिए या खत्म कर दीजिए. इट वाज जस्ट केविंग इन. सो देन गुरुजी से आया कर, बस आंधे आंधे समझ आंधी है, होली होली आया कर. तो आते 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 6, 7, 8 साल बीत गए, एंड मैं इम्पेशेंट हो गई, एंड मेरी मैरिज और कोलैप्स होती जा रही थी. And it was becoming more and more challenging to be in that space. And I thought कि गुरुजी मुझे प्यार नहीं करते हैं, उनको पता भी होगा I'm sure कि क्या हो रहा है मेरी domestic life में, क्या हो रहा है मेरी marital life में. I'm sure he's aware, but he's not really focusing on this aspect. So गुरुजी ने मुझे बोला हुआ था, this is a very interesting सत्संग, कि तू रोज ना दिया जलाया कर, घी दा दिया मेरे स्वरूप ते अगे. मैं रोज जलाती थी. फिर मैं इम्पेशेंट हो गई कि गुरुजी मुझे प्यार ही नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे तो ना मेरी मैरिज ठीक हो रही है, ना टूट रही है, ना रिजॉल्व हो रही है, डिजॉल्व हो रही है, कुछ नहीं. इट्स जस्ट आई एम जस्ट मूविंग, आई एम गोइंग थ्रू द मोशन, बट द इमोशन वाज गेटिंग वर्स. आई वाज गेटिंग हर्ट मोर एंड मोर. सो मैं एक हफ्ता गुरुजी के पास गई नहीं, एंड एक रात मैं दिया जलाने की कोशिश कर रही थी, एक शाम को, और वो दिया भी नहीं जला. पूरी मैच बॉक्स फिनिश हो गई, करती गई, चलाया नहीं, ओके नेक्स्ट, पूरी मैच बॉक्स खत्म हो गई. मैंने कहा अब तो गुरुजी पक्का भूल गया मुझे, और गुरुजी रब कैसे हो सकते हैं जब मेरी मैरिज कोलैप्स हो रही है और मेरा इशू रिजॉल्व नहीं कर रहे. मैं बाथरूम चले गई, बाथरूम से बाहर आई तो दिया ऐसे जल रहा अपने आप. The flame was this high, unmistakably there, blazing like the sun. I looked at it, I said, जब मैं गई थी तो वो तो मैच स्टिक खत्म हो गई, सारा मैच बॉक्स खत्म हो गया, and it was not lit anyhow. That evening, I decided, okay, आज मैं चले जाती हूँ गुरुजी के पास, because the diya was lit. And when I was walking in, and there was a line in Chota Mandir, so Guruji was sitting on his gatti and he goes, "Idhar aa." मैं कहा हाँ जी गुरुजी. कहते दिया जल गया, रब नहीं भूलदा, तुसी भूलदे हो. हर चीज दा टाइम हुंदा है, ते आया कर. So then I understood that Guruji is no miracle worker. हुंदा चमत्कार नूं नमस्कार आजकल, लेकिन इट्स अ जर्नी ऑफ योर कार्मिक जर्नी. तो ये हर चीज टाइम से अनफोल्ड होती है, चाहे 10 साल लग जाए, चाहे 20 साल लग जाए. His delays are not his denials. This is what I learned. It is not an easy journey with Guruji. Don't think it's a bed of roses. The thorns are there also with Guruji also.
because there are tough days. But then you focus on the rose. You focus on the fragrance. Don't focus on the rose. Whatever you focus on will grow. So I learned to shift my perspective. Of course, there was a moment of doubt. There was a time where my faith wavered. Faith is never infallible. Faith is never unwavering. When times are good, we say Jai Guruji. When times are not good, we say, where are you, Guruji? So, but then with time, he unfolds your life the way he wants it to be. His plans are better than our plans, Isha. His timing is far more superior than our timing. We get restless, especially whether it's my generation, the generation lower. We are living in a restless age. Why? At the press of a button, we're getting food at the table. At the press of a button, I have coffee on my table. At the press of a button, I can order my clothes. We are getting restless. So to be restful, we need to sit in a satsang. Because that time, we are not pressing any buttons. We are only pressing his button. Okay, Guruji, please awaken the divinity with me. Make me restful, make me calm, make me composed, make me unaffected by all this restlessness on the external. दुनिया जो मर्जी करती रहे, कलयुग उनके लिए है, मुझे सतयुग में ले आई है. I want to be in Satyug. I want to be calm, composed. I want to be the best version of me. I want to be what you want me to be. So there's two things. एक तो था निव्या नु फल लगदा, humility बड़ी जरूरी है. एंड माँ बाप की सेवा जरूर करो. माँ बाप की ब्लेसिंग्स रब दी ब्लेसिंग्स होंदी है. सो वो बहुत जरूरी है. और सबसे जरूरी जो मैंने सीखा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज एक चुप सौ सुख. हम कितना बोल रहे हैं पर एक चुप सौ सुख. अगर कोई सामने वाला आपको कुछ बोल भी रहा है जो गलत है, आपको हर्ट कर रहा है, आप रिएक्ट नहीं करो, रिस्पॉन्ड करो. बिकॉज साइलेंस इज गोल्डन, स्पेशली इन द सोशल मीडिया एज, जहां लोग वो पकड़ लेते हैं आपकी बात एंड फिर एकदम एग्जैजरेट करके दे थ्रो इट आउट ऑफ प्रपोर्शन. सो आपके पीस ऑफ माइंड के लिए और आपकी कामनेस के लिए, सुकून के लिए एक चुप सौ सुख. कोई क्रिटिसाइज कर रहा है आपके फेस पे, एबीसी कर रहा है, सानू की गुरुजी ने सिखा दिया. मैं ही निंदा कर रही थी किसी की गुरुजी के साथ. गुरुजी बैठे थे, मैंने कहा गुरुजी वो ऐसी, कहते सानू की. एक चुप सौ सुख.